Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we will solve unsolved example 7.14 of chapter 7. A coil of inductance 0.50 Henry and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt 10 kHz AC supply. Find what is the maximum current in the coil. What is the time lag between the voltage maximum and current maximum? Explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. How does an inductor behave in DC circuit after steady state? So this is very simple example and similar to example 7.13. एग्जाम्पल 7.13 में हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू भी 0.50 ही थी, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी 100 ओम थी, वोल्टेज वी की वैल्यू 240 वोल्ट थी, बट द डिफरेंस इज ओनली इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. In example 7.13 we have the value of frequency is 50 Hz, but in this example we have the value of frequency is 10 kilohertz and we have to find the maximum current and time lag and we have to prove this statement, right? और previous example में मीन 7.13 में हमने maximum current और time lag तो find किया ही था. Okay, so this is very simple example. Let's start to solve. First we will calculate the maximum current in the coil, right? Here we have this parameter available: inductance L, resistance R, voltage V and frequency F. Okay, and here we have to find the maximum current IM. Okay, so maximum current IM कैसे find करेंगे? By using the equation √2 into IRMS. Okay, √2 into IRMS, ये इक्वेशन में हमारे पास करंट की आरएमएस वैल्यू भी होनी चाहिए और करंट की आरएमएस वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? आई आर एम एस विच इज इक्वल टू वी बाई जेड, राइट? वोल्टेज की ये आरएमएस वैल्यू है वो हमारे पास है विच इज 240 वोल्ट, राइट? बट द वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस जेड वी हैव टू फाइंड, राइट? और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इम्पेडेंस जेड इन दिस केस? दिस इज अवर इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर. ओके, आरएल सीरीज सर्किट है हमारी, तो आरएल सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस जेड का इक्वेशन क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, राइट? सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एम. So Im which is equal to √2 into IRMS, and for IRMS which is equal to VRMS divided by Z, and Z equal to under root R square plus XL square. Okay, and from this equation we will calculate the value of XL which is equal to 2 pi FL. Okay, so first we will calculate XL, then IRMS and finally Im. Okay, so XL which is equal to 2 pi F into L, right? So here 2 into pi 3.14 into 10 kilohertz, 10 into 10 is to 3 into L, the value of inductance which is 0.50 Henry. After solving this we will get the value of XL as 31415.9 ohm. Okay, so यहाँ पे हमारे पास XL की वैल्यू आ गई. Now IRMS, XL फाइंड कर लिया, फिर IRMS फाइंड करेंगे by using this equation. IRMS which is equal to V by Z, V which is 240 divided by under root R square plus XL होल स्क्वायर, क्योंकि ये Z का इक्वेशन है. ओके, रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी है? 100 ओम, राइट? ओके, और XL की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की? 31415.9 ओम. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ R, XL and V in this equation. We will calculate the value of IRMS and we will get the value of IRMS as 0.777 इंटू 10⁻² एम्पियर, राइट? तो ये तो हमारी आई आर एम एस वैल्यू है. वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू बाय यूजिंग √2 इंटू आई आर एम एस. ये इक्वेशन यूज करके हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. आई एम विच इज इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस, राइट? और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 0.77 इंटू 10⁻² एम्पियर, राइट? सो यहाँ पे हमें Im की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1.1 इंटू 10⁻² एम्पियर मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट केस वी हैव सॉल्व हियर. मैक्सिमम करंट जो फाइंड करना था वो हमें यहाँ पे
फाइंड कर लिया। इन सेकंड केस वी हैव टू फाइंड आउट टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। We have already derived the equation for time lag, particularly in the case of RL series circuit. तो टाइम लैग का इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया था? एग्जाम्पल 7.13 में टाइम लैग विच इज इक्वल टू 5/ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 5 और ओमेगा दोनों की वैल्यू होगी तभी हम टाइम लैग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू फाइंड तो इजीली हो जाएगी बाय यूजिंग इक्वेशन 2πf, राइट। बट यहाँ पे ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होता है, ओके, और 5 डिग्री में होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 5 को भी रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसका डिवीजन ले सकते हैं और टाइम लैग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट एंगल 5 फर्स्ट इन रेडियन पर सेकंड। तो ये हमारी कौन सी सर्किट है? आरएल सीरीज सर्किट है, राइट। हमारे पास इंडक्टेंस एल है और रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस है ही नहीं। तो ये हमारी आरएल सीरीज सर्किट है। और आरएल सीरीज सर्किट में इंपेडेंस ट्रायंगल कैसा होगा? लाइक दिस इज रेजिस्टेंस आर, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल एंड दिस इज इंपेडेंस जेड एंड दिस इज एंगल फाई। फ्रॉम दिस ट्राइंगल tan phi क्या होगा? tan phi which is equal to this side divided by base XL by R, and from this equation XL which is equal to omega L by R. So tan phi which is equal to omega L by R होगा. Now put the value of omega 2 pi f L divided by R. We have the value of f, L and R. Put in this equation and find out angle phi. Okay. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलो हर्ट्ज एंड इंडक्टेंस L 0.5 और रेजिस्टेंस 100। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 100 पाई मिलेगा। tan phi which is equal to 100 pi, and from this equation phi equal to tan inverse 100 pi. ओके, सो यहाँ पे एंगल phi कितना मिलेगा? ये सॉल्व करेंगे तो हम 89.82 डिग्री मिलेगा। तो ये तो डिग्री में है एंगल फाई, वी नीड टू कन्वर्ट इन रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180, राइट। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये एंगल फाई मिलेगा, वो रेडियन पर सेकंड में होगा, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट टाइम लैग 5 बाय ओमेगा। टाइम लैग विच इज इक्वल टू 5 बाई ओमेगा। 5 की वैल्यू कितनी है? 89.82 इंटू पाई बाई 180, ये रही 5 की वैल्यू, ओके, डिवाइड बाई ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ। ओके, तो ये अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू रखी मैंने 10 किलो हर्ट्ज, राइट। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द टाइम लैग टी विच इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁶ मीन्स 25 माइक्रो सेकंड में, क्योंकि टाइम लैग किस में हो सकता है? सेकंड में, या फिर मिली सेकंड में, या फिर माइक्रो सेकंड में। ओके, सो हियर वी हैव सॉल्व द सेकंड केस, राइट। टाइम लैग हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर इन अ सर्किट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। नियरली यहाँ पे क्या स्टेटमेंट में क्या कहा है? एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट, राइट। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज विच इज़ वेरी हाई। ओके, तो हमने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करके करंट की वैल्यू फाइंड की है। ओके, तो हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी मिली थी? करंट की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी फाइंड की थी? 1.1 इंटू 10⁻² एम्पियर, राइट। यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू आई एम की वैल्यू कितनी फाइंड की थी? 1.1 इंटू 10⁻², राइट। तो ये जो करंट की वैल्यू है विच इज़ वेरी स्मॉल, ओके। और ये जो करंट की वैल्यू है वो हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी पे फाइंड की थी? 10 किलोहर्ट्ज पे। तो ये स्टेटमेंट तो प्रूव हो गया हमारा। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर इन अ सर्किट नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट, मीन्स करंट की वैल्यू बहुत कम आनी चाहिए। ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, बट इट इज नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट यहाँ पे है।
तो करंट की वैल्यू बहुत कम मिलेगी यहाँ पे, और हमें कितनी मिली थी 1.1 into 10⁻² एम्पियर, राइट। Now the next statement is, how does an inductor behave in a DC circuit after the steady state? और हमें पता है after steady state inductor behaves as short circuit, right? और शॉर्ट सर्किट जब होगा तो हमारे इंडक्टर होगा वो प्योर कंडक्टर जैसा वर्क करेगा। इन स्टेडी स्टेट डीसी सर्किट ओमेगा एल विच इज इक्वल टू 0, सो इंडक्टर बिहेव्स एज प्योर कंडक्टर। ओके, तो आफ्टर द स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज प्योर कंडक्टर। ओके, तो हाँ, यहाँ पे हमने 3 केस फाइंड किए हैं। टाइम लैग फाइंड किया, मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड की। ओके, और ये जो करंट था कि at very high frequency, what about the value of current? Okay, and what is the behavior of inductor after the steady state? Okay, thank you.